So, good evening, everybody, and good evening, Imran. Nice that you can be there. आप सबकी खिदमत में सलाम आपको सलाम अर्ज करती हूँ और बहुत खुशी है आप दोबारा आप We are having our last session. Thank you. We are having our last session on the theology of God. आज खुदा की जात के लिहाज से जो उनमें इलाहियात है उसकी हम आखिरी क्लास हम कंडक्ट करते हैं So I hope you could really take something with you of those classes. आज खुदा मंदिर इस्लाम से कुछ हम अपने साथ लेके जाएं And I stopped last time about, I was talking about grace. पिछली दफा हमने फजल के ताल्लुक से जो है बात करते हुए क्लास का इख्तिताम किया था And I want just to say a little word about the two ways that grace is often understood. और मैंने बताया था कि अक्सर दूर तरह से फजल को जो है वो समझा जाता है There's what we call common grace and saving grace. एक तो आम फजल है और एक फजल है जो कि हमें निजात देता है And common grace refers to the goodness, the kindness, and blessing that God extends to all people, whether they believe in Him or not. आम जो फजल है उसका मतलब है कि खुदा की भलाई उसकी मेहरबानी उसकी अच्छाई और वो खुदा उन सब लोगों पर भी करता है जो उसकी जात पर ईमान नहीं रखते उन पर भी खुदावंद वो अपना आम फजल करता है Every breath we take, the beauty of creation, the provision of food, human relationship, government, knowledge, everything comes from the grace of God. याद रखें दुनिया में कोई भी चीज है हर एक चीज जो सांस लेती है कायनात में जो खूबसूरत चीजें तो तकलीफ है सब चीजें जो है वो हुकूमतें हैं वो इख्तियार हैं सारे खुदा के फजल की बदौलत से तकलीफ में आए And they are an expression of God's common grace. और हम देखते हैं उनमें खुदा के आम फजल का इजहार हमें नजर आता है You know, I think it's amazing that people take all of it for granted. हाँ, ये बड़ी हैरान की बात है कि अक्सर लोग इसको जो है वो इसकी कदर नहीं करते हैं और इसको मामूली समझते हैं And they don't realize that every movement they make is because God is gracious. और वो इस बात को समझ नहीं पाते कि जो कुछ भी अपनी जिंदगी में वो नक्ल हरकत करते हैं या कोई भी जुम्मन जो वो अपनी जिंदगी में करते हैं तो वो ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के फजल की बदौलत होता है And Matthew 5:45 talks about that God makes his sun rise on the evil and on the good and sends rain on the just and on the unjust. और मत्ती है कि खुदा जो है अपना सूरज हर नेक और बद पर तुम पैसा इसी तरह Common grace restrains evil, preserves society. Do you hear me? और वो खुदा वो सब पर वो फजल करता है And allows humanity to experience many of God's blessings despite living in a fallen world. और हम देखते हैं कि आम फजल की बदौलत सब इंसान जो है वो खुदा की बरकत का वो तजर्बा करते हैं Beside the common grace, we have then what is called saving grace. इस आम फजल के साथ और फजल जिसके बारे में बात हुई थी वो है खुदा की बचाने वाली कुदरत का And this grace is God's special one given to sinners through Jesus Christ.
और ये कार्य It is the grace. Do you hear me correctly? I don't hear yeah, you very. It's okay? you said that I can connect with my cell phone. I don't hear you very well. Are you still there? Mm. Sorry, I heard you too. Can you hear me now? Yes, beautiful. Okay. Yeah, I have Sorry. switched to my cell phone. Actually, there's an Okay. electricity problem, and that's because of my laptop is not working. Okay. Okay. So I come back to saving grace. It's a special grace given to sinners through Jesus Christ. It is the grace by और हम which बात कर रहे थे खास फजल की जो कि यीशु मसीह की वसीला से गुनहगारों पर होता है it is the grace by which God forgives sins, grants repentance and faith, justifies the believers and gives eternal life. और ये वो फजल है जिसके वसीला से खुदा गुनाहों को मुआफ करता है और गुनहगारों को जो है वो पाक और साफ करता है उनकी तकदीस करता है Ephesians says, "For by grace you have been saved through faith." और इफ्सियों के खत में लिखा है तो तुमको फजल ही के वसीला से निजात मिली है While common grace is experienced by all people, saving grace is experienced by those who put their trust in Christ through faith. आमीन। हम देखते हैं कि जहाँ पे आम फजल जो है वो सब लोग उसका तजर्बा करते हैं लेकिन जो खास फजल जो कि बचाने वाला फजल है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से ही उसका तजर्बा किया जाता है Common grace sustains life in this world. Saving grace reconciles sinners to God and prepares them for the world to come. और हम देखते हैं कि आम जो फजल है वो ये दुनिया में रहकर जो है वो उसका तजर्बा किया जाता है लेकिन जो खुदा का खास फजल है जो कि बचाने वाला फजल है उसके वसीला से हम खुदा के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाता है And really, the desire of God is to see that everybody will trust Him enough to receive that saving grace. और खुदा की ये दिली लालसा है कि हर एक जो इंसान इस जमीन पर रहता है वो उस पर भरोसा करे और इस बचाने वाले फजल को वो हासिल कर सके And now, another character of God is that God is love. एक और खुदा के किरदार की जो सिफ्त है वो ये है कि खुदा मोहब्बत है Love is not merely something God does, it is part of His very nature. और याद रखिए ये कोई आम खासियत नहीं बल्कि ये खुदा की फितरत का हिस्सा है And everything He does is consistent with His perfect love. और जो कुछ भी खुदा करता है ये उसकी इस खासियत की वजह से है कि वो मोहब्बत करता है और उस मोहब्बत की वजह से वो सब कुछ करता है His love is not just temporary, याद रखिए उसकी जो मोहब्बत है वो आर्जी नहीं है His love is not only emotional, और याद रखिए उसकी मोहब्बत जज्बाती नहीं है or His love doesn't depend upon the worthiness of the ones He loves. और याद रखिए उसकी मोहब्बत जो है वो इस बात पे इन्हिसार नहीं करता हाँ कि कौन शख्स उसकी मोहब्बत के लिए लायक है या नहीं है God's love is infinite, unchanging, and eternal.
याद रखिए खुदा की मोहब्बत लाजवाल है, ला तब्दील है और अबदी है। I think that if God was only powerful and omniscient and omnipresent, he would terrorize people. Can you please repeat that? That if God was only powerful and omniscient and omnipresent, he would terrorize people. और याद रखिए क्योंकि खुदा जो है वो हाकिम कुल है और हर जगह मौजूद है, और ये उसकी जात की सिफत है कि वो मोहब्बत रखता है। But he is all of this, and above all, he is love. लेकिन इन सब चीजों के बावजूद कि खुदा सारा इल्म रखता है, वो हर जगह मौजूद है, वो खुदा मोहब्बत रखता है। The Apostle John writes, Beloved, let us love one another, for love is from God. और इसीलिए यूहन्ना रसूल तो ये कहता है कि आए भाइयों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें क्योंकि खुदा मोहब्बत है। आमीन। And whoever loves has been born of God and knows God. Sorry, yeah, I was distracted. Can you please repeat that? Um, and whoever loves has been born of God and knows God. और याद रखें कि जो शख्स मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, And anyone who does not love does not know God. और ये हकीकत है कि जो भी शख्स मोहब्बत नहीं रखता तो इसका मतलब है वो खुदा को नहीं जानता, Because God is love. क्योंकि खुदा मोहब्बत है। And we have to notice that John doesn't say simply that God is loving, but that God is love. याद रखें, इन लफ्जों पर अगर गौर करें, ये नहीं कि खुदा मोहब्बत करने वाला है, बल्कि खुदा खुद मोहब्बत है। It does not mean that love is God or not, or that God is only love. और इसका मतलब ये नहीं कि हाँ और कि खुदा सिर्फ मोहब्बत है, बल्कि खुदा मोहब्बत है। It means that genuine love finds its source and perfect expression in Him. और इसका मतलब है कि खुदा मोहब्बत का असल मबदा है और मोहब्बत का असल इजहार है। God's love did not begin when He created the world. याद रखिए कि खुदा की मोहब्बत का आगाज सिर्फ उसी वक्त नहीं हुआ कि जब उसने कायनात को बनाया। Before creation existed, the Father loved the Son, and the Son loved the Father, and they all had fellowship, loving fellowship with the Holy Spirit. आप देखिए कि इससे पहले कि खुदा कायनात को तख्लीक करता, खुदा बाप, खुदा बेटे, तीनों एक खूबसूरत रफाकत में एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखते हैं, और ये अजल से है। In John 17, Jesus prayed, You loved me before the foundation of the world. और हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसके 17वें बाब में मसीह खुदा ने कहा, खुदा तूने दुनिया के आगाज से ही पहले, कयाम से पहले ही तूने मुझसे मोहब्बत रखी। So love therefore belongs to God's eternal nature. और तो याद रखिए कि जो मोहब्बत है वो खुदा की अबदी फितरत के साथ ताल्लुक रखती है। God has always been loving because He has always existed as Father, Son, and Holy Spirit. और हम देखते हैं कि खुदा में मोहब्बत शुरू से है, क्योंकि खुदा बाप, खुदा बेटे, ये तीनों रफाकत में मोहब्बत से रहते हैं अजल से ही। And human love is often based on attractiveness, usefulness, or mutual benefit. और याद रखिए, जब आप इंसानी मोहब्बत की बात करते हैं तो इंसानी मोहब्बत जो है वो एक दूसरे के लिए जो अट्रैक्शन होती है उस पर, और जो जिस्मानी ख्वाहिशत है उस पर इन्हिसार करती है। And we know how sometimes it can really fluctuate.
Sorry, can you please repeat that? You know, He can change the intensity of the love that we experience is sometimes high and then sometimes low. और खुदा की मोहब्बत ऐसी नहीं है कि हम उसकी शिद्दत कभी वो बहुत ज्यादा और कभी वो बहुत कम है, ऐसा नहीं है. The wonder of the gospel is that God loved us while we were still sinners. और अंजील इस बात की खूबसूरती को जाहिर करती है कि जब हम गुनहगार ही थे तो खुदा हमारे लिए मर गया. And God's love is not earned by human goodness. और याद रखे खुदा की मोहब्बत को कभी भी इंसानी अच्छे कामों से जो है वो हासिल नहीं कर सकते हैं. It flows from His gracious character. और याद रखे ये उसके पुरफजल किरदार से इसका बहाव होता है. The greatest demonstration of God's love is found at the cross. For God so loved the world that He gave His only Son. और मोहब्बत का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा इजहार हमें सलीब पर नजर आता है कि जहाँ पे हमें ये नजर आता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. आमीन. You see, God's love is not merely words or feelings, it's action. Sorry, please, I'm facing some in data problem. God's love, Can you please repeat that? God's love is not only words or feelings. He acts, He takes action. Yes, you cannot be connected. Is there any problem with the connection? I guess he has. I see. Okay. Hello, Imran. Praise God. Are you back? No, he's not, but it was Pastor Nadeem. Okay. Yeah. That's a strong voice we heard. Praise God. I What wonder time is if. it? Yeah. Sorry? What time is it where you are? Yes, 10:35 In in the the morning. morning. Yeah. Okay. Okay.
So I wonder if Sister Nasreen is available, if she could fill in. Yes, sir. Okay. Only 1 minute, please. Thank you. Okay. Good evening, sir. Good Hello. evening. Hello, good evening, Sister Evelyn. What's your name, Nadine? My name is Nasreen. Okay. So can we Yeah. go on? She's part of Happy Winners, you know. Yes, I see your picture Yeah. there. Yeah. Happy Winners team. Yes, dear Evelyn. Okay. I was talking about that God love is not merely words or feelings. Progress. I was laptop. My laptop. Yes. Are you okay there? Yes. Okay. So I I was will not saying that open my video as the connections due to not very much sufficient connections. So yes, I know. I understand. It's okay. So God love is not merely words or feelings. yes, we can start. Okay. So God's love is not merely words or feeling, and I was talking about John 3:16. Uh, hello, can you hear me, Sister Evelyn? Yes. Yeah. But I'm not listening your voice. Just I want Okay. to You don't hear me. I hear you sound and clear. Your audio is fine. hello. Yeah.
Yes, Sister Evelyn. Yes, you hear me? Can you hear me? Yes, I hear you. Do you hear me? I am not hearing your voice. Just I. Can you hear me? Yes. अब आवाज आ रही है आपको मुझसे? Yes, we hear you, but it's not very clear. रसन कर रहे हैं सर, सिर्फ एक चल रहा है, एंजल आ गए ना, आएगी बात, गाड़ी के चले। Yes. Yes, Sister Evelyn. Are you there? Do you hear me now? Yes. Yes. Okay. So I was talking about John 3:16. और हम के में थे तीसरा बाब उसकी 16वीं आयत के बारे में हम बात कर रहे थे Which is the greatest demonstration of God's love. कि- और बहुत ही अजीम है और जिसमें खुदावंद ने अपने बारे में बहुत ही ज्यादा अपनी मोहब्बत में बयान किया है And God's love is not merely words or feelings, it's also action. और खुदावंद की जो मोहब्बत है वो जस्ट सिर्फ अल्फाज की ही मोहब्बत नहीं या जज्बाती मोहब्बत नहीं बल्कि खुदावंद ने अपनी मोहब्बत को अमलन साबित किया Because he gave his son to bear the judgment we deserve so that we might be reconciled to him. और देखिए कि खुदावंद ने अपने बेटे को दिया ताकि खुदावंद जो है वो इस बात को साबित करे कि खुदा जो है वो
अदालत ना सिर्फ अदालत करने वाला है बल्कि खुदा जो है वो इन बनी हुई इंसान को मलाप कराने वाला है, यानी कि उसने अपने बेटे को जजमेंट के लिए, अदालत के लिए ना सिर्फ तैयार किया बल्कि मलाप के लिए, कि बाप के साथ दोबारा मलाप। And that love cannot be separated from His holiness, His justice, His truth, and His righteousness. और हम खुदावन की जो मोहब्बत है उसको खुदा की जो कुदूसियत है उससे जुदा नहीं कर सकते। यानी खुदा पाक है, खुदा मोहब्बत करने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ चूंकि खुदावन पाक है इसलिए वो इंसाफ, सच्चाई और रास्तबाजी का खुदा भी है। And in that sense, we can say that God's love is a holy love. और हम ये कह सकते हैं कि खुदा की जो मोहब्बत है वो खुदा की मोहब्बत जो है वो एक पाकीज़ा मोहब्बत है, Because He's perfect, complete. क्योंकि खुदा जो है वो कामिल खुदा है। And the only thing that love does is love. क्योंकि खुदावंद जो है वो ना सिर्फ मोहब्बत करता है बल्कि खुदा खुद मोहब्बत है। हालेलुया। But God's love is also a just love. और खुदा की जो मोहब्बत है वो सिर्फ मोहब्बत है, He does not ignore sin. यानी हम ये कह सकते हैं कि खुदा की जो मोहब्बत है वो गुनाह को नजरअंदाज नहीं कर सकती, और ये भी खुदा की मोहब्बत का एक हिस्सा है कि वो खुदा जो है गुनाह को नजरअंदाज नहीं करता। And because His love, He's so perfect and so complete, He's going to provide a way for sinners to be forgiven through Jesus Christ. चूंकि मोहब्बत का खुदा है, और खुदा की मोहब्बत इसलिए भी एक कामिल मोहब्बत है कि खुदा गुनाहगारों के लिए इस चीज को मुहैया करता है, यानी मौका देता है कि वो जरूर यीशु मसीह के पास आए ताकि गुनाहों से उनकी मखलसी और खलासी हो। And the cross is the place where God's love and justice meet perfectly. और देखिए जो खुदावंद की यीशु मसीह की सलीब है वो ना सिर्फ एक मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत को के एहसास को कबूल करने की जगह है, बल्कि सलीब का पैगाम जो है मुकम्मल तौर पर इंसाफ और अदालत के बारे में हमें बताता है। And Paul says that neither death nor life nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God demonstrated in Christ Jesus. और इसीलिए पौलुस रसूल ये कहता है कि खुदा जो है वो ना सिर्फ मौत बल्कि जिंदगी भी है, और खुदा जो है वो उसने तमाम कुछ तख्लीक किया ताकि खुदा जो है यानी हम ये कह सकते हैं कि मौत क्यों बनी, ताकि खुदा जो है वो खुदा इसको जाने, और खुदा जो है यीशु मसीह के जरिया से अपनी मोहब्बत को जाहिर करता है। And when we just try or start to understand the depths and the height and the width of the love of God, we will then hear the call to reflect this love. और इसीलिए इस बात से जब हम खुदा यीशु मसीह की बुलाहट को सुनते हैं और उसके जो मोहब्बत का एहसास है उसको महसूस करते हैं और खुदा अपनी मोहब्बत को जाहिर करता है, तो फिर हम जानते हैं कि खुदा कितना गहरा है और कितनी गहराई से वो अपने लोगों से मोहब्बत करता है। That's why John says, if you don't love the others, you don't love God, so you don't know God. So our goal is really to start understanding the power and the greatness of His love, so that we can really reflect it. और इसीलिए यूहन्ना ये कहता है कि हम जो मोहब्बत करते हैं, खुदा हमसे मोहब्बत करता है, हम खुदा से मोहब्बत नहीं करते बल्कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है, और यही खुदा की मोहब्बत की ताकत है जो हमें समझने और खुदा के करीब लाने की ताकत बख्शती है, और फिर हम खुदा की जो मोहब्बत है उसकी अजमत को हम समझते हैं। And one of the greatest character attribute of God is His holiness. और खुदा के किरदार यानी खुदा की अजीम खूबी ये है कि खुदा जो है अपने किरदार में नहायत मुकद्दस है।
Holiness is perhaps the one most emphasized in scriptures. और खुदा की जो मोहब्बत है उसके बारे में हम Holiness speaks of God's absolute moral purity. और जो खुदा की कदूसियत है वो भी इस बात को बताती है कि खुदा जो है And his complete separation from all sin. और फिर खुदा जो है मुकम्मल तौर पर हर चीज का है. And to say that God is holy is to say that he's entirely righteous, pure, and unlike anything else in creation. और जब हम ये कहते हैं कि खुदा मुकद्दस है तो फिर हम इस बात का मुकम्मल तौर पर हम इकरार करते हैं कि खुदा जो है वो रास्तबाजी का खुदा है जो हर तख्लीक के बारे में मुकम्मल तौर पर जानता है. In the vision of और heaven, the living, yes. और इसके बारे में वो गुनाह को बिल्कुल भी यानी खुदा जो है वो बदी पर निगाह नहीं करता. In the vision of heaven, the living creatures continually proclaim, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. और जब हम आसमानी जो रोया है उसके बारे में हम देखते हैं कि जब आसमान पर जो यूहन्ना को ये रोया मिली तो यहाँ पे देखता है कि जो फरिश्ते हैं वो खुदावंद को कदूस 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 रब्बुल अफवाज कहते हैं. And the repetition is significant. In Hebrew thought, repetition was used to express emphasis. और इसीलिए इब्रानियों के खत में रसूल इस बात पे बहुत ज्यादा जोर देता है कि हमें खुदावन के हजूर में मुकद्दस होना है क्योंकि खुदा जो है वो पाक है. The scripture never said that God is love, love, love. और ये जो हम पढ़ा इसमें सिर्फ जिक्र नहीं कि खुदा मोहब्बत है बल्कि खुदा मोहब्बत या रहीम या मोहब्बत करने वाले के अलावा खुदा जो है वो पाक भी है. Or that he's powerful, powerful, powerful. We never see that in scripture, but we see holy, holy, holy. यानी और फिर हम ये सिर्फ नहीं हवाले में पढ़ते कि खुदा जो कुदरत वाला है खुदा कुदरत वाला है बल्कि इसके साथ साथ इस हवाला में हमें ये बात भी मिलती है खुदा जो है वो पाक है. And it shows this, the highest importance of God's holiness. और खुदा जो है वो बुलंदो बाला है और यही वजह है कि खुदा जो है वो पाक है. Holiness is not merely one attribute among many. It permeates all his attributes. और खुदा की जो कदूसियत है वो सिर्फ एक ही चीज में हम नहीं देखते कि यानी हम कहने का मकसद ये है कि जो है वो कदूस है और ये सिर्फ हम खुदा को एक तरफ में नहीं देखते जहां वो कदूस है वहां वो इंसाफ वाला खुदा भी है. God's love is a holy love. His justice is a holy justice. His mercy is a holy mercy. और खुदा जो है खुदा की मोहब्बत जो है वो मोहब्बत है पाक मोहब्बत है लेकिन जहां पे इंसाफ की बात है तो वहां पे खुदा जो है अपने कदूसियत के साथ साथ इंसाफ और अदल का खुदा भी है. And when it is confronting with us, the holiness of God reveals the seriousness of sin. और इसके बारे में खुदा का कलाम और खुदा खुद हमसे ये कहता है कि हमें गुनाह के बारे में बिल्कुल भी हमें अवेयर होने की जरूरत है. हमें इस बात से बाखबर होने की जरूरत है कि खुदा जो है गुनाह के बारे में इंतहाई संजीदा है. यानी खुदा जो है गुनाहगारों को तो कबूल करता है लेकिन खुदा गुनाह पे निगाह नहीं करता गुनाह को कबूल नहीं करता. And in the Bible, those who encounter God's holiness become deeply aware of their own sinfulness.
और बाइबल मुकद्दस हमें इसके बारे में, खुदा की जहाँ पे कदूसियत के बारे में बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, तो फिर बाइबल मुकद्दस हमें ये कहती है कि हमें अपने किरदार में गुनाह से मुबर्रा होने की जरूरत है, यानी गुनाह जिंदगी से अलग होने की जरूरत है। Isaiah cried, "Woe is me!" And Peter said, "Depart from me, for I am a sinful man." और देखें, यसाया जो है वो अपने आप पे अफसोस करता है, और यहाँ पे जो पतरस है वो भी अपने आप को इससे अलहदा अपने आप को बताता है कि मैं तो एक गुनाहगार हूं। And the closer a person comes to God, the more clearly he sees both God's holiness and his whole need of grace. और जब भी कोई शख्स खुदावंद के करीब आता है तो उसको इस बात से इंतहाई जानने की जरूरत है कि खुदा जो है वो पाक और कदूस है, और लेकिन इसके साथ साथ हमें उसके फजल की जरूरत होती है। जब एक गुनाहगार जो है उसको खुदा के फजल की जरूरत होती है। And the holiness of God will lead believer to worship, humility, obedience. और ये खुदा की कदूसियत ही है जो गुनाहगारों को, यानी ईमान लाने वालों को इस काबिल बनाती है, उनकी रहनुमाई करती है ताकि वो बड़ी आजिज़ी के साथ और बड़ी फर्माबरदारी के साथ उसकी इबादत करें। The God we serve is not merely powerful or wise. He is infinitely pure and perfect in all what he does. और तभी हम खुदा की जो है उसकी अजमत के लायक और उसकी अलहुयत के लायक फिर हम उसकी इबादत कर सकते हैं, जब हम खालिस तौर पर और मुकम्मल तौर पर खुद को खुदावंद के हवाले कर लेते हैं और उसकी कदूसियत को कबूल करते और अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। And the cry of heavens remains the cry of God's people on earth. Holy, holy is the Lord God Almighty. और इसीलिए आसमान पे जो फरिश्ते हैं वो खुदावंद का गीत गाते हैं कि खुदावंद कदूस 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 रब्बुल अफवाज है, और जमीन पर भी जो इंसान है वो उसकी कुदरत का और उसकी कुदूसियत का इकरार करते हैं। And the last point I want to cover with the doctrine of God is the glory of God. और आखिरी जो पॉइंट है मैं उसको कवर अप करना चाहूंगी, जो कि खुदावंद की अलहुयत के बारे में है और खुदावंद के जलाल के बारे में। And the glory of God is the visible display of all that God is. और खुदावंद का जलाल जो है वो तमाम चीजें जो खुदावंद ने इस दुनिया में बनाई हैं उसी से जाहिर होता है। It is the manifestation of his holiness, power, wisdom, goodness, love and majesty. और फिर खुदा की जो सारी चीजें हमें नजर आती हैं उसी से खुदा की कदूसियत, उसकी कुदरत, उसकी हिकमत, उसकी भलाई और मोहब्बत और उसकी जो अजमत है, तमाम चीजें उसी का बयान करती है। When God's glory is revealed, his greatness becomes visible to his creatures. और खुदा का जो जलाल है वो बनी इंसान पे, जो सारी मखलूक है उस पे जाहिर होता है, यानी खुदा का जो जलाल है उसकी बनाई हुई चीजों से जाहिर होता है। And Habakkuk chapter 3 verse 4 says that his radiance is like the sunlight. He has rays flashing from his hand, and there is the hiding of his power. Chapter 3 of Chapter verse 3 4. verse 4, yeah. Yes, the book of, please. Habakkuk, the prophet Habakkuk. Okay. हबक्कूक की किताब में से हम देखते हैं 30वां बाब और उसकी 4थी आयत में और Is that यहाँ true? पे जो खुदा का जलाल है, यस, और यहाँ पे हबक्कूक की किताब उसका 30वां बाब 4थी आयत में तो खुदा का जलाल जो है वो उसकी जगमगाहट नूर की मानिंद है, और उसके जो हाथ की किरणें, उसके हाथ से किरणें निकलती हैं, और फिर इसमें उसकी कुदरत नुमाया है,
यानी वो नूर जो नजर आ रहा है, जो जगमगाहट नजर आ रही है और किरणें नजर आ रही हैं, असल में वो उसके जलाल की किरणें हैं। हालेलुया। Imagery, the image emphasizes the overwhelming brilliance of and majesty of God. और ये तमाम जो तस्वराती चीजें हैं जो कि हमें यहाँ पे बयान हो रही है, ये सारी की सारी खुदा की अजमत और खुदा की जो कुदरत है उसका बयान कर रही हैं। But it's like the sun, God's glory surpasses all human comprehension. यानी खुदा की खादमा ये कह रही है कि जो ये चीजें लिखने वाले ने यानी मुसन्निफ ने इस्तेमाल की है कि उसके जो जलाल है वो सूरज की मानिंद है, और उसका जो जलाल है वो तमाम बनी नौ इंसान के चुगिर्द जो चीजें चीजें नजर आ रही हैं उसके जरिए से खुदा का जो जलाल है वो जाहिर हो रहा है। His infinite greatness is far beyond what creation can fully perceive. और खुदा ने जो तमाम मखलूकात को तख्लीक किया, जो तमाम मखलूकात है, ये उसकी कुदरत और उसकी जो अजमत है, ना खत्म होने वाली अजमत जो है, उसके सोचने से भी परे है। God's glory is not something he acquires, it is something he possesses eternally because of who he is. और खुदा की जो कदूसियत है या खुदा का जो कुदरत है, जलाल है, वो जाहिर होता है। If God's holiness reveals his inner perfection, his glory is the shining forth of that perfection. और खुदा के अंदर जो कदूसियत है वो उसके अंदर से जाहिर होती है, यानी उसके जो कामलियत है उसके अंदर से जाहिर होती है, और उसका जलाल जो है, उसके जलाल की जो कुव्वत है उसके अंदर से निकलती है। Through the Bible, God's glory is revealed in powerful ways. और खुदा का जो जलाल है ये उसकी कुदरत के करामात और निशानात से जाहिर होती है। His glory filled the tabernacle in the wilderness and filled the temple of Solomon. और खुदा का जो जलाल है वो जाहिर हुआ खैमा इज्तिमा में, और फिर बियाबान में खैमा इज्तिमा के अंदर, और फिर सुलेमान का जो महल था वो भर गया खुदा के जलाल से। Moses' face shone after meeting God. और यही वजह थी कि जब मूसा से खुदा हम कलाम हुआ तो वो ही जलाल मूसा के चेहरे पर था, और जब खुदा के साथ उसने मुलाकात की। And we know that Isaiah in chapter 6 saw the Lord high and lifted up, and the seraphim cried, the whole earth is full of his glory. और देखें इसी तरह से यसाया में उसके छठे बाब में हम पढ़ते हैं कि खुदा को यसाया ने एक ऊंचे मकाम पर देखा, और वहां पे सराफीम जो थे वो पुकार रहे थे, और सारी जमीन जो थी उसके जलाल से पूर हो गई, और यही था उसका जाहो जलाल। Creation itself displays God's glory. और जो मखलूकात है वो भी खुदा के जलाल को ही जाहिर करती है। जो तमाम क्रिएशन खुदा ने यानी तमाम कुछ तख्लीक किया, ये तमाम का तमाम खुदा का जलाल जाहिर करती है। Every star, every mountain, every ocean and living creatures bears witness to the greatness of its creator. हर एक सितारा, हर एक पहाड़ी और हर एक बहर जो समंदर है और तमाम जिंदा चीजें जो हैं वो तमाम की तमाम खुदा की अजमत को जाहिर करती हैं, यानी अपने खालिक की, अपने बनाने वाले के जलाल को जाहिर करती है और उसकी अजमत का बयान करती है। The fullest revelation of God's glory is found in Jesus Christ. और यीशु मसीह जो है वो खुदा के जलाल का एक मकशवा। And the word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory. और देखें खुदा का कलाम जो है उसी ने जिस्म लिया और फिर हमारे दरमियान में रहा, और फिर वहां पे लिखा है कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा।
Jesus is the perfect revelation of the Father's glory. His life, teaching, miracle, death, and resurrection reveal his character. और यीशु मसीह जो है वो बाप का मुकम्मल एक मुकाशफा है, यानी बाप के जलाल का मुकाशफा है। उसकी जिंदगी, उसकी तालीमात, उसके मौजज़ात, उसकी मौत और उसका दोबारा जी उठना और उसका किरदार जो है मुकम्मल तौर पर अपने बाप के जलाल को जाहिर करता है। And Hebrews says he is the radiance of the glory of God. और जो इब्रानियों में पौलुस रसूल ये कहता है कि वो खुदा के जलाल का परतू है, यानी खुदा के जलाल का परतू है। To see Christ is to see the glory of God revealed in human form. और यीशु मसीह, हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है अपने जलाल को अब जाहिर करता है, और ये अपने जलाल को किससे जाहिर करना चाहता है? बनी नौ इंसान के जरिए से। And one of the primary purpose of creation is to display that glory of God. और हर एक जो मखलूक है या खुदा की तख्लीक की हुई चीजें हैं, वो तमाम की तमाम बुनियादी तौर पर खुदा के जलाल को जाहिर करती है। And what the verse that I've said already, everyone who is called by my name, whom I created for my glory. और इसीलिए खुदा के कलाम में हम आयत में पढ़ते हैं कि हर एक चीज जिसको खुदा ने पैदा किया वो उसके जलाल को जाहिर करती है। And the purpose of our life is the glory of God, or to the glory of God. यानी जो हर एक चीज बनाई गई है, खुदा ने पैदा की है, वो तमाम की तमाम जो है खुदा के जलाल को जाहिर करती है और खुदा बाप के जलाल को जाहिर करती है। And one day believers will see God's glory more fully than what we can ever see now. और एक दिन आएगा कि हम जो ईमानदार हैं, यानी खुदा को कबूल करने वाले हैं, वो खुदा के जलाल को मुकम्मल तौर पर देखेंगे, जो कि जैसा कि वो इस दुनिया में नहीं अभी नहीं देख सकते, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो खुदा के जलाल को मुकम्मल तौर पर रूबरू देखेंगे। The Christian's life is moving towards the day when faith will become sight and God's people will dwell forever in his glorious presence. You know? Pardon me? The Christian life is moving towards the day when faith will become sight, when we will see, we won't have to believe anymore. Okay. और जो मसीही जिंदगी है, जैसे जैसे हम मसीही जिंदगी में बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे खुदा का जो जलाल है, हम काबिल हो जाते हैं कि ईमान में कि हम खुदा के जलाल को देखें, जो कि जो And we will dwell forever in this presence, in the glory of God that we will see. और इसीलिए जब हम खुदा की मौजूदगी में होंगे तो तब हम खुदा के जलाल को रूबरू देखेंगे। And when we understand something of God's glory, pride is humble, worship is deepened, and faith is strengthened. यानी जैसे जैसे हम खुदा के कलाम में पढ़ते जाते हैं तो हम खुदा की जो मौजूद प्रेजेंस है उसको समझते जाते हैं, और फिर हम रूह में पढ़ते जाते हैं तो फिर हम खुदा के जलाल में पढ़ते जाते हैं, और फिर जब हम खुदा के जलाल में पढ़ते जाते हैं, कब पढ़ते हैं? जब हम बहुत गहरे तौर पे खुदा के साथ जुड़ जाते हैं और नहायत ईमानदारी से और ईमान की कुव्वत से भरकर हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, तब हम खुदा के जलाल में। And the doctrine of God, glory reminds us that God is infinitely majestic and worthy of all our praises. और देखिए, यही खुदा के जो डॉक्ट्राइन है, यही असल में खुदा की डॉक्ट्राइन है कि खुदा जो है वो जलाल से भरा हुआ है, खुदा अजमत से भरा हुआ है, और खुदावंद ही है जो प्रस्तिश के लायक है, सिजदों के लायक है। His glory fills heaven and earth, shines through creation, is perfectly revealed in Jesus Christ. और खुदा का जो जलाल है वो जमीन जो है उसकी जलाल से पुर है, और जो जमीन है, मखलूकात है,
उसके जलाल से मुलव्विस हैं और मुकम्मल तौर पर यीशु मसीह असल में जो है वो खुदा बाप के जलाल का एक मुकाशफा है। And one day it will be fully enjoyed by those who belong to him. और जो जितने भी खुदा यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं उसको कबूल करते हैं, उस पे ईमान लाते हैं, उसमें निजात पाते हैं, वो एक ना एक दिन रूबरू उसके जलाल का लुत्फ उठाएंगे। And because of that, the only response of every creature is to glorify God and delight in him, and that forever. लेकिन ये कब होगा? जब हर एक जो है उसके पैदा की हुई मखलूक जो है या ईमान लाने वाले जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने खालिक के साथ जुड़ जाते हैं और उसकी अजमत में बढ़ते जाते हैं और उसकी फर्मा बरदारी में रहते हैं, तब वो इस जलाल से मुनव्वर होते हैं। Amen. आमीन। So I have come to the end of my notes and the doctrine of God. और Um, मैंने Yes. जो अपने नोट्स हैं वो उनका इख्तिताम किया है, यानी जो खुदा की खादमा कह रही है कि जो सेक्शन वो पढ़ा रही थी जिसके बारे में, तो आज वो उन्होंने And I इसको don't खत्म know कर if लिया। you, I have an assignment there. I don't know if you received it. और खुदा की खादमा कह रही है कि यहाँ पे आपको मैं असाइनमेंट है और मुझे ये असाइनमेंट मैंने दिया, मुझे नहीं पता कि आप तक पहुंच गया असाइनमेंट। यस सर। I don't know if I haven't received yet. I have 3 for homeworks plus a final exam. Did I send that to you? Not really. Okay, then I will do that. Thank you. Lovely. So, Thank you, sir. Actually, my headphone was there was a problem in that, so I sure. But it was I beautiful. You're a very good translator. Yeah, Very. Thank you. very good communicator and translator. Yes, we can see that. Thank you. Thank you. It's your appreciation and prayer, sir. Thank you. Sure. Lovely. So, have a nice day, a nice evening. Thank you. And I'll be there tomorrow morning. Nice Thank evening you. to you Yes, thank as you. well. Okay. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Bye bye.